સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પદવીદાન સમારોહનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શ્રી ગુરુ રવિદાસ વિશ્વ મહાપીઠનું સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ઉત્તરાખંડ સરકારના પૂર્વ મંત્રી રવિદાસાચાર્ય શ્રી સુરેશ રાઠોડજીના અધ્યક્ષ સ્થાને પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં જીવન કવચ ઉપર વિસ્તૃત રીતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, તેમજ મહાપીઠનું કામ અને ગુરુજીના વિચારો પ્રત્યેક ઘર સુધી પહોંચે તે માટેના શપથવિધિ પણ કરાવવામાં આવી હતી। આ સાથે જ નવનિત હોદ્દેદારોની નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। શ્રી ગુરુ રવિદાસ વિશ્વ મહાપીઠમાં 151 લોકોએ શપથ ગ્રહણ કર્યું હતું। કાર્યક્રમના અંતે સૌએ સાથે શ્રી ગુરુજીનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને કાર્યક્રમનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज ની જય। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ જે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે, સમગ્ર ભારતમાં વિસ્તરાયેલી છે, જેનું દક્ષિણ ગુજરાતમાં વિસ્તરણ કરી અને એક નવી કમિટીની રચના કરવામાં આવી। દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે મારી નિમણૂક કરવામાં આવી અને આજે મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ પદાધિકારીઓનો પદવી સમારોહ યોજાયો। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી સુરેશજી રાઠોડ સાહેબ ખાસ ઉત્તરાખંડ હરિદ્વારથી પધાર્યા છે। નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ નરુભાઈ પરમાર સાહેબ તથા તમામ તેમની ટીમ, મહિલા અધ્યક્ષ શ્રીમતી તલ્લિકાબેન રાજ, ઉપાધ્યક્ષ શ્રી સુરેશભાઈ પરમાર સાહેબ તથા ડીસી પરમાર સાહેબ અને ભાવેશભાઈ ચાવડા પધાર્યા છે। આજે તેમની હાજરીમાં સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના પદાધિકારીઓની આજે નિમણૂક કરવામાં આવી છે। તમામ પદાધિકારીઓની એક જ માંગ છે કે જેઓ સુંદર કાશીમાં ગુરુ રવિદાસ મહારાજનો આશ્રમ છે, હરિદ્વારમાં આશ્રમ છે, તેવો સુંદર મજાનો આશ્રમ સૂર્યપુત્ર પુત્રી માતા તાપી નદીના કિનારે એક સુંદર મજાનું શ્રી રવિદાસ વિદ્યાસંકુલ બને અને એ વિદ્યાસંકુલમાં આ રોહિદાસ વંશીઓ સમગ્ર SC ST OBC નાત જાતના છે, કેમ કે રોહિદાસ મહારાજ કોઈ જ્ઞાતિના નથી, જ્ઞાતિમાં બંધાયેલા નથી, તો સમગ્ર માનવ જાતિના કામ આવે, વિશ્વને કામ આવે એવી એક સુંદર મજાનું એક શિક્ષણ સંકુલ બને એવી એના સાથે ઉમ્મીદ સાથે એક સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની એક આ મિટિંગ યોજાઈ અને જેમાં આવેલા પદાધિકારીઓએ સૌને સન્માનિત કર્યા છે। તો આજના કાર્યક્રમ થકી અમે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના રોહિદાસ વંશીઓને એ જણાવવા માંગીએ છીએ કે આવનારા ટૂંક સમયની અંદર સુરતના તાપ્તી નદી કિનારે सुंदर मजानु एक आश्रम गुरुजी ने एक कुटिया सूरत पहुंचा। आज यहाँ की कार्यकारिणी का गठन गुजरात प्रदेश के द्वारा किया गया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जात पात पूछे ना कोई, हरे का वजह तो हरि का हुई। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से अनेक रविदास कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और अनेक जनसभाएं करके, कार्यक्रम करके गांव-गांव गुरु रविदास विश्व महापीठ के कार्य का विस्तार बराबर निरंतर जारी है, सभी राज्यों में जारी है। लगभग 25 राज्यों में हमारी इकाई गठित है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, जिस तरह से शंकराचार्य की पदवी है उसी प्रकार से रविदासाचार्य की पदवी का निर्माण माननीय अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के माध्यम से 2010 में किया गया। उस समय मुझे माननीय सिंघल जी ने और प्रवीण तोगड़िया जी ने विशुद्ध परिषद के बैनर पर रविदासाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया और उसको सुशोभित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज MG बालाकृष्णन जी ने मेरा सत्कार दिल्ली के अंदर किया और तब से लेकर अब तक हम रविदास पीठ के माध्यम से बहुत सारे अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग 8 अधिवेशन हमारे राष्ट्रीय रविदास पीठ के माध्यम से हुए। 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रही है। हमारी अनेकों कथाएं होती हैं। 2010 में मैंने 10 मार्च 2010 को पहला कथा का आयोजन किया था। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। तब से लेकर अब तक नेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों के ऊपर हमारी रविदास कथाएं आती हैं और मैं कह सकता हूँ देश और दुनिया का सबसे बड़ा विशाल संगठन अगर कोई है तो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ है, जो सामाजिक चेतना, धार्मिक धर्म, सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और एकात्मवाद हम सबको इकट्ठा करके सनातन जोड़ो भारत जोड़ो, सनातन से भारत को जोड़ने का प्रयास जो हमारा चल रहा है
कुछ लोगों ने जो हमारे बीच में भ्रांतियां फैला दी थी, इस कारण से हमारे समाज के लोग अन्य जातियों में जाना प्रारंभ कर दिया था, उसको वापसी लाना। रविदास समाज को छोड़कर ईसाई बन गए या इस्लामीकरण कर लिया, उन पर रोक लगाने का काम रविदास पीठ के माध्यम से बड़े स्तर पर हुआ, जन जागरण किया गया और जो लोग चले गए उनको वापस लाने का काम भी हमारा बराबर जारी है। आपको स्मरण कराना चाहूँगा, शाह सिकंदर लोधी ने श्री गुरु रविदास हमारे जो गुरु जी थे, महाराज जी थे, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया। तब हमारे गुरु जी ने किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया था। आज कुछ लोग प्रलोभन देकर हमारे गरीब समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती भरा अवसर है। इसको हम तोड़ना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं और पीठ के माध्यम से ये जन जागरण पहुँचे, गांव में जागरूक हो, लोग भ्रांति ना फैलाएं, जागरूक होकर धर्म परिवर्तन ना करने दें और अपने समाज के लोगों को सुदृढ़ और आगे स्तर पर ले जाने का काम करें। ताप्ती नदी के किनारे पर गुरु रविदास जी का कोई संकुल बनना चाहिए, शिक्षा से संबंधित, मंदिर से संबंधित, इस तरह का प्रयोजन भी यहाँ पर हमने यहाँ की इकाई के द्वारा रखा गया। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूँगा कि गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस समाज की भावना को समझते हुए यहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे पर 2, 4, 5 एकड़ जमीन का वो घोषणा करें, ताकि हम यहाँ पर सुंदर सा एक पवित्र मंदिर और वहीं पर अपना शिक्षण संस्थान बनाकर अपनी समाज की एक व्यवस्था जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंगे जैसा। श्री गुरु ने जो उपदेश दिए, आज उनकी वाणियों को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जात जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानन जुड़ सके लो ना जात में जात।